What is scope? What is scope? Some of you PUBG players might think that's a 3x 4x scope, but it's not that. Unfortunately, I miss playing PUBG. Scope क्या है यार? Have you informally or formally said to your friends or somebody, यार ये तेरे स्कोप के बाहर है, यार ये तेरे बस की नहीं, ये तेरे स्कोप में नहीं है, या फिर ये मेरे स्कोप में है. So let's derive from this terminology and let's see how JS defines scope. On a very simple term, JS defines scope as an area. Biradari. Biradari nahi, just an area. Scope is a particular area where your variables can live and are accessible. मैं कहाँ रहता हूँ? मैं घर में रहता हूँ. मैं कहाँ का एक्सेसिबल हूँ? मैं पूरे घर में एक्सेसिबल हूँ. हो सकता है तुम्हारे पास कोई गेस्ट रूम हो, कोई गेस्ट आया हो, वो सिर्फ गेस्ट रूम में रहता, बाहर भी नहीं आता, खाना भी हम देते हैं, ऐसा होता नहीं है. व्हाट द फक. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन. सो people can have their own individual areas. We can have a whole global area. Like if एक घर है, it's a whole global area. So area is just to define, scope is just to define an area where your variables and functions and your declarations can live and are accessible. How can we define this area in JavaScript? यहाँ पर तो ईंट पत्थर और दीवार मार के हम कह सकते हैं बच्चों ये मेरा रूम है, ये भाई मास्टर बेडरूम है, ये फ्लैट का एरिया है. JavaScript के अंदर how does it enclose an area? How does it enclose a scope? So one is the global scope where everything is, for example, in your JS file, your top level code is the main global area. Everything is accessible anywhere. It's a global area. Other than that, if you want a more confined area, you can have those curly braces. Anything inside those curly braces is like a more confined space. It is enclosing, it is isolating some space for itself. For example, flat के अंदर कमरे होते हैं, तो कमरे क्या है? Basically उस पूरे flat के अंदर से they're enclosing some separate space for themselves. Understand the concept? Easy है. Simply put, scope is an area where variables and functions exist and are accessible. What do we mean by an area in the JS ecosystem? Simply put, a place where a variable or function exists. ठीक है, मैं अभी अपने रूम में हूँ, मेरा स्कोप इस रूम तक है. वैसे भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाहर जाऊँगा नहीं, मेरा स्कोप इस रूम तक है. How can we physically encapsulate a scope or area for our variables? In JS, there are two kinds of scopes available for variables and functions. Global scope, as I told you, this is the area where the top level code lives. मान लो कि आपकी फाइल है ये, ठीक है, तो ये टॉप लेवल कोड है, ये किसी के अंदर एनक्लोज नहीं है. इट्स जस्ट इन अंडर योर फाइल. तो फाइल के अंदर जो भी आता है, इट्स मोर ऑफ अ ग्लोबल एरिया. लोकल स्कोप, we can enclose a certain area for our declarations to be only accessible within that certain area. इतना हैवी क्या लिखने की जरूरत थी भाई मेरे को? We need to restrict, or we need to define a place. Sorry guys. For example, we need to have a separate confined space for myself. What I will do, I want to enclose an area. How can I enclose an area? Using local scope. How can we enclose a local scope? Like blocks. Whenever you create this parenthesis, you have defined a separate space for yourself, and whatever has been defined inside will not be accessible outside this area. 1 घंटे के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इस रूम में बंद हो गया हूँ, मैं सिर्फ रूम के अंदर ही मिलूंगा, रूम के बाहर नहीं मिलूंगा. गेट कुंडी लगा दी मैंने, इसने करली ब्रेसेस ने कुंडी लगा दी कि इसके अंदर भाई जो भी डिफाइन होगा वो इसके अंदर ही रहेगा. और इसके अंदर हमारी दो तरह की चीज़ें डिफाइन होती हैं, function scope and block scope. For example, function body, if you remember, function body is a function name, a function keyword, name, parenthesis, and these blocks. So function also enclose an area for themselves. है ना? Functions enclose some area for themselves. Let's see what this area is. Declarations made inside a function are not accessible outside the function. For example, this function foo has a const x. I am only accessible here. If you try to access me from the top level, from the global scope,
I will give you an error. I will tell you that I don't know what you're saying, bro. In this top level area, in this space, I don't see an X here. Because why? I have enclosed it into this area. This this curly braces, when we enclose them using function keyword, it creates a function scope. In the code example, we have enclosed a separate area for the scope, blah blah blah. X is not accessible outside that scope. Block scope. Block scope is when you want, for example, if you remember, the curly braces are not just used by functions, they are used by your conditionals as well. For example, if statements, else statements, so they also have those curly braces. So those are called block scopes. If क्या करेगा, if condition पैरेंथेसिस शुरू हो गया, यानी कि इसने अपनी एक सेपरेट कन्फाइंड स्पेस बनाने शुरू कर दी है. सो इट इज़, उसको ब्लॉक स्कोप कहते हैं. फंक्शन स्कोप इज फंक्शन के अंदर वाला एरिया, ब्लॉक स्कोप इज कंडीशनल्स के अंदर वाला एरिया. कंडीशनल्स ना भी हो, व्हेन यू सिंपली हैव कर्ली ब्रेसेस, we can achieve a higher degree of isolation or confinement for our variables. These are created by conditionals, iterators, not for example for loop हो गया, while हो गया. for loop के अंदर भी जैसे आप जो डिक्लेयर करते हो, वो for loop के curly braces के अंदर ही accessible है, बाहर नहीं accessible है. The idea again is all declarations should be confined to the block, but the JS engine is like कि थोड़ा सा tricky. Even though it has block scoping, but not everything will agree with this block scope. For example, var, if you declare var keyword inside a block scope, it will automatically get hoisted to its immediate parent function scope. Sounds heavy? Nothing, कुछ नहीं है. For example, ये ब्लॉक स्कोप है, ये फंक्शन स्कोप है, ठीक है. यू हैव डिफाइंड var x इनसाइड दिस कंडीशनल, इनसाइड दिस ब्लॉक, बट JS engine is designed this way to hoist it to the latest function, the immediate parent function scope. You can access it here. It will not give an error. It will give undefined. Why? Because hoisting. But it will not give an error. So what is even the point of block scoping? When your variables are being hoisted to a function level scope, what is the point of block scopes? ES6 was like, I understand your pain. I understand that var यार साला कहीं भी hoist हो जा रहा है, कहीं भी undefined कर रहा है. Let me introduce let and const. Let and const were introduced not just for the temporal dead zone वाला thing. They were meant to be block scoped. जिस भी ब्लॉक के अंदर, चाहे फंक्शन हो चाहे आपका ब्लॉक स्कोप हो, अगर उस स्कोप के अंदर आपने डिफाइन कर दिया तो वो बस वहीं एक्सेसिबल है. There are ways to break that, but for now let's not boggle ourselves and think. Let and const variables जब एक ब्लॉक स्कोप के अंदर है, किसी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनिशियलाइज हो गए हैं, डिक्लेयर हो गए हैं, वो सिर्फ उसके अंदर ही अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन फू के अंदर यू हैव एक्स वाई जी वेरिएबल्स. इफ के अंदर हमने वॉर भी डिक्लेयर किया है, लेटर कॉन्स्ट भी डिक्लेयर किया है. दिस वॉर इज अवेलेबल in this function. It is available inside this function body. It will give undefined, not an error. But the let and the const will give you an error if you try to access him outside. अच्छा, foo execute हुआ. What if after foo I do something like var z? What will happen? Think a little bit. What will happen? I told you that z is function scoped. इस ब्लॉक के अंदर का इमीडिएट पेरेंट इज फंक्शन इज दिस. सो यहाँ तो एक्सेसिबल है, बट ये फंक्शन स्कोप के भी बाहर हो गया. ये तो ग्लोबल स्कोप है, ये तो पूरा जावास्क्रिप्ट की फाइल ग्लोबल स्कोप है. तो वॉर इज नॉट ग्लोबली स्कोप्ड एंड इट इज फंक्शन स्कोप्ड. तो यहाँ पर इट विल गिव एन एरर कि भाई रेफरेंस एरर, कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, पागल हो गए हो तुम क्या, कि कोई बात कुछ बात की कुछ कर रहे हो, भाड़ में जाओ. पर हम इतने सारे कहानी कर क्यों रहे हैं?
हम इतने एरियाज क्यों डिफाइन कर रहे हैं? वाई आर वी कन्फाइनिंग आर लॉजिक इनटू सेपरेट सेपरेट एरियाज? ये तो यहाँ पर विजिबल है तो यहाँ पर नहीं है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लोकल स्कोपिंग? सो फर्स्ट इज वेरिएबल शैडोइंग. Variable shadowing is like, for example, should I show you first? Let me define first. For example, एक ब्लॉक के अंदर आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है विद अ सर्टेन नेम, तो वो इस ब्लॉक के अंदर ही विजिबल है. सो आउटसाइड दिस ब्लॉक यू कैन हैव अ वेरिएबल विद द सेम नेम एंड इट विल नॉट कॉज एनी कॉन्फ्लिक्ट्स. आई एम सॉरी. So it's called variable shadowing. The names are being shadowed, but they are not causing conflicts. Why? Because the JS engine is intelligent. It knows अच्छा है इस वेरिएबल का ये स्कोप है, तो इस स्कोप के अंदर अगर रेफरेंस हो रहा होगा तो यानी कि ये वाले वेरिएबल की बात हो रही है. यहाँ पर अगर इस नाम से एक्सेस हो रहा है तो इसका स्कोप अलग है, तो ये अलग है. वेरिएबल शैडोइंग. सी const is block scoped. So this is accessible inside it as well, but we can do it. It will not throw an error. It will be like इस ब्लॉक के अंदर जब हम x को रेफर करेंगे तो इट विल से अच्छा ये इस स्कोप का है, एंड जब इसके हम बाहर आ जाएंगे, इस इफ के बाहर अगर हम console.log करेंगे तो वो इस वाले को रेफर करेगा, बिकॉज ये वाला तो वैसे भी बाहर एक्सेसिबल ही नहीं है. Isolation. So what we were able to do, we were isolate our separate code blocks. We were able to isolate some areas. We were able to privatize, not privatize. We were able to confine some space for things. ये scope इसी का है, यहाँ पर यही variables होंगे. We were able to perform isolation, separation of concerns. Interference नहीं है. Reducing the risk of modularity. Modularity is what? आपने मॉडलराइज कर दिया, आपने डिफरेंट एरियाज असाइन कर दिए, तो योर कोड बिकम्स मोर रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड मैनेजेबल. कंपार्टमेंटलाइज, मेकिंग मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस इजियर. रीयूजेबिलिटी. हाँ, द थिंग बीइंग कि रीयूजेबिलिटी, यू कैन रीयूज द नेम्स ऑफ वेरिएबल्स विदाउट वरीइंग दैट इट माइट कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते. What are lexical scopes? Let's understand it this way. Scopes क्या कह रहा है? Scope क्या कह रहा है? कर्ली ब्रेस बनाओ, अपने लिए एक एरिया ले जाओ. कर्ली ब्रेस बनाओ, इसके अंदर जितना भी चीज़ होगा वो उस एरिया के अंदर होगा. कर्ली ब्रेस बनाओ, एरिया ले जाओ. लेक्सिकल स्कोप कर रहा है, वो देख रहा है कि ये एरिया कहाँ है. इस हाउस के अंदर मास्टर बेडरूम कहाँ है, किड्स रूम कहाँ है, गेस्ट रूम कहाँ है. तो लेक्सिकल वर्ड का मतलब एक पोजीशन होता है कि इस स्कोप की एक ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में, इन अ ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स, वेयर इज इट पोजिशन्ड, वेयर इज इट्स लेक्सिकली पोजिशन्ड. अंडरस्टैंड this positioning allows JavaScript to figure out a certain thing. For example, you can have a function, उसके अंदर you might have a nested if else, a nested function, and it is able to access the parents variables, the parents things like that. How? Because it is able to lexically identify कि even though मैं एक if scope के अंदर हूँ, पर मेरे बाहर भी एक स्कोप है. उसे कैसे पता कि वो बाहर है? क्योंकि उसे खुद पता है कि वो कहाँ है. तो मुझे पता है कि मैं इफ़ को पता है कि मैं एक फंक्शन के अंदर हूँ, तो मेरे पास खुद का स्कोप तो है, बट मैं लेक्सिकली एक और स्कोप के अंदर हूँ, तो मेरे पास उसका भी एक्सेस है. तो लेक्सिकली पोजिशनिंग हमको पोजिशनिंग हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट ऑल इज एक्सेसिबल वेयर. लेक्सिकल मीन्स पोजिशन. Where is the declaration located physically present? This helps us to determine the visibility or accessibility of certain variables and function. For example, we have a top level function. We have an inner function. So inner function here has access to the parent scope. इसके अंदर जो भी डिफाइंड होगा वो इसके अंदर ही विजिबल होगा, बट इसके अंदर हमारे पास कुछ और भी चीज़ें एक्सेसिबल हैं. क्यों?
बिकॉज लेक्सिकली इट इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट मैं कहाँ हूँ। यार मैं खुद एक फंक्शन के अंदर हूँ, तो मेरे पास उसकी प्रॉपर्टीज का भी एक्सेस है। मेरे पास जो है वो बाहर लोगों के पास है या नहीं वो अलग बात है, पर मेरे पास खुद भी कुछ ऊपर से चीजें आ रही हैं, राइट? तो दैट इज डिटरमाइंड बाय लेक्सिकली वेयर द स्कोप इज पोजिशन्ड. The phenomenon where a child function has access to its parent scope is called the lexical scope of function. Very simple, very beautiful. But then what is lexical environment? So many jargons. Scope, lexical environment. Nothing too fancy. How is the JS engine able to figure out कि इस स्कोप को मुझे ये सब चीज़ें भी देनी है, जो भी इसका आउटर स्कोप है, जो भी इसका आउटर स्कोप है, मुझे इसका भी एक्सेस देना है. उसके पास एक्सेस है, हम कह देते हैं लेक्सिकल स्कोप है. बट कैसे? जीएस इंजन को कैसे पता? जीएस इंजन कैसे फिगर आउट करता है? तो इंटरनली इट मेंटेन्स अ डेटा स्ट्रक्चर. इंटरनली इट मीन्स अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर इट हैज़ वेरिएबल बाइंडिंग्स फॉर दैट पर्टिकुलर स्कोप. फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा हैवी हो गया. फंक्शन फू है. फंक्शन फू का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है. उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर होगा, लेक्सिकल एनवायरनमेंट, विच विल मेंटेन द बाइंडिंग्स. इस फंक्शन के अंदर ये है, इसके अंदर ये है. वो अभी अंदर नहीं जाएगा, बाहर बाहर क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ अ लेट y इक्वल्स टू गुड मॉर्निंग. इट विल सी कि मेरे पास फू के अंदर, फू के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक कॉन्स्ट एक्स है, एक लेट वाई है, एक फंक्शन बॉडी है. उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, डज नॉट कंसर्न विद दैट. एक कॉन्स्ट वेरिएबल्स हैं, फंक्शन बॉडी है. तो हर एक फंक्शन का अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, और हर एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट होता है. उस एनवायरनमेंट में उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की वेरिएबल बाइंडिंग्स होती हैं. और क्या होता है? अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की वेरिएबल बाइंडिंग्स होती हैं, और इमीडिएट पेरेंट के लेक्सिकल एनवायरनमेंट का रेफरेंस होता है. व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग. जैसे ये आपका इनर फंक्शन है, इसका खुद का एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट होगा, खुद का, क्योंकि फंक्शन है तो इसका खुद का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा, खुद का लेक्सिकल एनवायरनमेंट होगा. उस लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर बाइंडिंग्स होंगी कि ये वेरिएबल्स हैं. उन बाइंडिंग्स के साथ उसके पास एक रेफरेंस होगा उसके पेरेंट के लेक्सिकल एनवायरनमेंट का. सो समझे आप? खुद का लेक्सिकल एनवायरनमेंट तो है, उस लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर एक रेफरेंस है पेरेंट के लेक्सिकल एनवायरनमेंट. इसके अंदर एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर एक रेफरेंस है. उसके अंदर एक और लेक्सिकल एनवायरनमेंट नहीं है, ये लेक्सिकल एनवायरनमेंट सेपरेट है, बट इसका रेफरेंस इसके पास है. सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जब मैं कंसोल डॉट एक्स करता हूँ तो पहले वो अपने लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर ढूंढता है. उसको नहीं मिला, उसके पास रेफरेंस में उसके पेरेंट का लेक्सिकल एनवायरनमेंट भी है, वो उसके अंदर देखता है, उसको मिल जाता है तो वो उसको यूज़ कर लेता है. दैट इज़ हाउ यू आर एबल टू से अच्छा लेक्सिकल स्कोप था, पेरेंट का यूज़ कर लिया. बोलने के लिए सिर्फ बोलने में आसान है कि लेक्सिकल स्कोप था, पेरेंट के अंदर पोजीशन था, इसलिए मिल गया. कैसे मिल गया? क्योंकि उसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट के पास पेरेंट के लेक्सिकल एनवायरनमेंट का रेफरेंस था. उसके पेरेंट के पास उसके पेरेंट का रेफरेंस होगा, उसके पेरेंट का रेफरेंस होगा, तो इट विल गो टिल द ग्लोबल लेक्सिकल एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस फंक्शन फू के बाहर अगर मैंने कुछ कॉन्स्ट ये किया, तो ग्लोबल एक ग्लोबल लेक्सिकल एनवायरनमेंट है, फिर ये एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट है, ये एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट है. तो इसके पास लेक्सिकल एनवायरनमेंट के पास इसका रेफरेंस होगा, इसके पास इसका होगा. तो अगर मैं इसके अंदर नम यूज़ करता हूँ तो देखेगा क्या इस लेक्सिकल एनवायरनमेंट में है? नहीं है. पेरेंट में चेक करते हैं, इस पेरेंट में है? नहीं है. ग्लोबली है? हाँ है, यूज़ कर लेगा. बट सिर्फ पेरेंट, सिबलिंग्स नहीं. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर एक फंक्शन इनर
foo2 होता, और यहाँ होता कुछ const hi equals to hello. सो ये इनर फू उसका पेरेंट नहीं है, सिबलिंग है. तो अगर हम इस हाई को हम एक्सेस करें, ट्राई करने की इसके अंदर, तो वो क्या करेगा, अरे हाई मेरे पास तो नहीं है, चलो पेरेंट के पास है क्या, पेरेंट के पास नहीं है हाई, ये इसके अंदर है, पेरेंट के पास नहीं है, पेरेंट के पास भी नहीं है, कोई बात नहीं, क्या पेरेंट के पास है, उसके पास भी नहीं है, रेफरेंस एरर. सो यू कैन इमेजिन इट लाइक अ पीप होल. एक दरवाज़ा होता है ना, इट हैज़ अ पीप होल. अंदर जो बंदा है वो बाहर देख पा रहा है, बाहर कौन है, बाहर का बंदा नहीं देख सकता अंदर कौन है. फंक्शन फू में अगर मैं इस नम को एक्सेस करूं जो कि इनर फू के अंदर है, आई विल गेट अ रेफरेंस एरर, बिकॉज वाई, इट इज़ ब्लॉक स्कोप्ड, इसके बाहर एक्सेस नहीं है, बट इसको बाहर का एक्सेस है. क्यों? लेक्सिकल एनवायरनमेंट के चक्कर में. एंड lexical environment is the underlying data structure which holds the internal bindings of all the variables and function defined. Now हमने क्या देखा, इसके पास इसका एक्सेस है, इसके पास इसका एक्सेस है. बेसिकली your lexical environments create a reference to your parent's lexical environment. So when I am able to access something which is not intrinsic to my scope, it is why due to scope chain. Each lexical environment holds a reference to its parent lexical environment. This chaining of lexical environments where they hold the reference to their parent's lexical environment, and we can climb up the lexical environments to figure out whether this variable exists, is called as the scope chain. This is how under the hood children have access to parent scope. It first looks inside a child's lexical environment, then climbs up the scope chain to resolve the variable it wants access to. So lexical scope versus lexical environment. Lexical scope is just a way of saying, it's just saying, a way of saying कि भाई मैं यहाँ पोजीशन दूँ, पेरेंट के अंदर हूँ, तो मेरे पास उसका एक्सेस है. कैसे है? लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रखा है, रेफरेंसेस है, इसलिए एक्सेस है. It's just a concept, it's an actual data structure which has the scope chain. सिंपल चीज़ है भाई. Oh, what are closures? Let me just closures is a very interesting topic. It is a magical topic, you can say. You remember in our discussion I told you that functions are considered as first class citizens in JavaScript. Sometimes I think JavaScript considers them as VIPs only. Variable से ज़्यादा भी इज्जत है functions की. कैसे? Let's see that. Closures are a way, I repeat, closures, just try to stay with me. Closures are a way where your function returns a function. Functions are first class citizens. They can be passed as arguments. They can be returned from functions. Closure is a scenario or the phenomenon where a function returns a function, and even after that function has finished execution, this returned function still has access to the parent's lexical environment. Oh my god, ये क्या बोल दिया भाई, ये क्या बोल दिया, देख लेते हैं, आ जाओ. JS treat function powerful. देख, फंक्शन फू है, इट कैन रिटर्न अ फंक्शन, ठीक है. नाउ ये रिटर्न वर्ड भूल जा. फंक्शन नेस्टेड है इसके अंदर, इट इज एबल टू एक्सेस काउंटर. वाई? बिकॉज ऑफ लेक्सिकल स्कोपिंग. लेक्सिकल एनवायरनमेंट है इसके पास पेरेंट का, इट कैन एक्सेस द काउंटर वेरिएबल. जब हम फू को एग्जीक्यूट करते हैं तो इट रिटर्न्स अ फंक्शन, यानी कि इंक्रीमेंट काउंटर के अंदर एक फंक्शन बॉडी स्टोर हुई है. अब फंक्शन बॉडी है, यानी कि फंक्शन बॉडी को इन्वोक कर सकते हैं, उसको हम एक्चुअली कॉल कर सकते हैं, उसके अंदर जो लॉजिक है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड विल एग्जैक्टली डू दैट. ये फंक्शन बॉडी जो रिटर्न हुई है इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो पेरेंट का जो काउंटर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. इट इज़ एक्सेस टू दैट.
internally JS has a mechanism कि you are able to access your parents. Just understand it like that. Access क्यों है? Because lexical scope के अंदर है. Even though foo parent function execute हो गया है पूरा, बट ये तो फंक्शन बॉडी रिटर्न हुई ना. फंक्शन बॉडी को तो कितनी बार भी एग्जीक्यूट करो. क्या आप फू को बस एक ही बार एग्जीक्यूट कर सकते हो? आप फू को भी कितनी बार भी एग्जीक्यूट कर सकते हो. जितनी बार भी एग्जीक्यूट करोगे आपको एक फंक्शन वापस मिलेगा. ऐसे ही जब आपको एक फंक्शन मिलता है तो इसको आप सेपरेटली एग्जीक्यूट तो कर सकते हो ना. And that is what it is happening. When you separately executing this function, it is able to directly interact with the parent's lexical environment. Wow. This is something VVIP. ये तो variables भी पता नहीं करते हैं कि नहीं करते. It's a fact that the children have access to lexical scope of the parents via scope chaining, but this behavior can persist. This behavior can persist if those children are returned from the function and still hold the reference to their parent scope. What are the use case or benefits of closure? Thing is, you cannot, देखा जाए तो you cannot directly access counter. अगर आपको एक बाहर से अगर आपको काउंटर एक्सेस करना है, कुछ भी चेंज करना है, you first need to call the parent function. Parent function will return a set of methods which will let you indirectly interact with this variable. So what you're doing is you are encapsulating your logic such that, because JavaScript does not have keywords like private and private keywords like Java does. So private keyword क्या करता है? It restricts or refrains from user accessing it directly. It has some functions or logic in place which will ensure that it is being accessed correctly. So बाहर की दुनिया से encapsulate हो गया. फू के बाहर अगर आपको काउंटर को एक्सेस करना है, फू कॉल करके आपको उसके रिटर्न फंक्शन के थ्रू ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो. तो इट परफॉर्म्स एनकैप्सुलेशन, डेटा एनकैप्सुलेशन एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग. फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है? Basically functional programming is that you're able to return functions. So closures help us to create higher order functions which take in a function and return a function, because foo is returning a function. यहाँ पर क्या होता है? For example, in your server side development you can create loggers for your functions. loggers क्या करेंगे? वो आपका वो फंक्शन लेंगे, उसके ऊपर कुछ चीज़ें करेंगे और वही फंक्शन आपको रिटर्न कर देंगे. तो इट क्रिएट्स अ हायर ऑर्डर फंक्शन. Okay, so that is it. I think it was a heavy video, almost 1 hour long. It was a heavy video, but I enjoyed it. I enjoy giving you guys loads of dense information, and I hope you guys enjoy it too. See you next time. Hope you guys have subscribed, liked, and please support your boy.